इट इज वेरी एम्पावरिंग। ओके, और फिर जो है हम डिसीजन लेते हैं और अपने चॉइसेस के हिसाब से जो डिसीजन लेते हैं, द डिसीजन में बी राइट, रॉन्ग, बैड, गुड, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट supposing if the decision is good, your life fulfillment takes place. And it is through your thoughts, your feelings, your attitudes, and your emotions. Hence, we say positive attitude रखो. They are useful in empowering self as well as motivating and inspiring others through sessions as well. Through your good deeds as well. ठीक है? Next slide. Hello. So in case of a stagnant behavior, a stagnant toxic environment where you feel you are stuck up in life और आगे नहीं बढ़ सकते हैं, homeopathy helps. So because humans are not an isolated, they socialize. एक ग्रुप में रहना, जैसे जो है इस दूसरे के साथ में इंटरैक्ट भी करते हैं. So let's see the homeopathic approach towards it. Perform a quick screen of the negative emotion. Negative emotions आया, halt, brought in by the patient. Okay, और उसमें 60,000 thoughts per day होता है. 60,000 thoughts per day, and the maximum concentration power is 45 minutes. Session, taking long sessions, but maximum concentration power is 45 minutes. So apply general pharmacological approaches to the treatment part first. Bring in positivity through counseling. Next slide, please. अब इसमें है विकार. विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा. आरती में कहते हैं व्हाट इज विकार. विकार आर द वाइसेस. मॉरल एथिक्स और वैल्यू के साथ में चलते हैं, तो उसमें विकार. जब कोई आगे बढ़ता है और फिर जो है जेलिसी आ गया और उसमें डिससैटिस्फाइड ऑफ समवन्स अचीवमेंट, पोजीशन और परसीव्ड एडवांटेजेस. वी हैव द एड, if you recollect, Onida, neighbors own and owner's pride, and the neighbors are jealous about it. I own an Onida TV, but the other person is getting LCD. How come he gets that? Okay, so this is the feeling. It is irony that one becomes jealous. उसने अपने मेहनत से वो ओनिडा टीवी, एलसीडी वगैरह लिया है. तो जेलिस ऑफन अकर्स व्हेन देयर इज फीलिंग ऑफ सेपरेशन. मुझे नहीं मिला ना, लेकिन वो साथ में फिर वो कंपटीशन जो है आपस में आ जाता है. और सस्पिशियसनेस, उसको कैसे मिला होगा. मिसट्रस्टफुल, वेदर इज सस्पिशियसनेस, उसके साथ में आपका मिसट्रस्टफुल. बीट्रे जो होता है वो जब आप किसी पे विश्वास करते हैं और ट्रस्ट आ जाता है. ठीक है, तो लेट द स्लाइड ग्लो स्लोली. ओके, तो जो है उसमें वी नीड टू लर्न टू बी हैप्पी एट द सक्सेस ऑफ अदर्स. ओके, कैन वी हैव द स्लाइड शेयरिंग स्लो प्लीज. Yes, ma'am. Not yet completed and the slide is moving faster. Let's bring in the positivity through counseling and thus in a way help self-welfare as well as others' welfare as well. Stop. Jealousy, wait, Mansi. Remedies for controlling negative emotions like jealousy. So we have hyoscyamus, strong emotions, become strongly attached. When you are attached, जिधर जो है ये विकार है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. Okay, so your attachment, the desires, the lust factor, that is काम. क्रोध, anger आया. लोभ, greediness आया. मोह, attachment. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. अहंकार is your ego. When I was small, no, I had attended Brahma Kumari, the session. We had danced on this song. Kram, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शिव के ज्ञान से मिट गया मन का अंधकार.
So and this homeopathy we have got remedies as well. तो वो रेमेडीज आपको हेल्प करेंगे. दिस लीड्स टू जेलेसी एंड सस्पिशियसनेस, quarrelsome, cursing, abusing, and fighting. There was a case, okay? One girl was there, and there was another girl who was born in the family. So she was feeling jealous about it because more attention was given to the newborn. और उसमें भी जो है दूसरी और एक रेमेडी है इग्नेशिया. इग्नेशिया में जब डॉटर इन लॉ और नई डॉटर इन लॉ आ गई तो उस जो है पुरानी डॉटर इन लॉ को जेलिसी फील हुआ. Lattices, when one is attached to the material value, to the possession, very possessive to things and persons, okay, and envy. तो envy और jealousy दो बातें हैं. Jealousy जो है ना वो negative trait है. Envy in fact is a positive trait because मैं मेहनत करके मैं भी लाऊंगा, ओ नीड अचीव योर एल. ठीक है. और जेलिसी में वो लाया है, कैसे ला सकता है वो, कंपटीशन आ जाता है. डिजायर्स फॉर अदर्स पोजीशन, उसके पास है तो मेरे पास भी चाहिए, उसको अवार्ड मिला तो मुझे भी चाहिए, उसके साथ में जो कंपटीशन हुआ है उसका नाम हुआ तो मेरा क्यों नहीं, मैं क्यों पीछे रह जाऊं, उसने अपना मेहनत किया और उसको मिला. जेलिसी, सस्पिशियसनेस और फियर ऑफ बीइंग पॉइजन. लैकेसिस को मैं दवा भी नहीं लूंगा, पॉइजन दिया रहेगा तो ऐसा में इसको भी लगता है ऐसा है ना. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Suspiciousness is mistrustful. He is being suspicious. वाइफ कोई और लोग से बात तो नहीं कर रही है, कोई अफेयर तो नहीं होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अफेयर कोई किसी और बंदे के साथ में बात करी. शी माइट बी टॉकिंग टू सम अदर गाय. So this male is getting suspicious about it. Next slide. So the selfishness path props in. फिर खुद का देखा है. और हम जब आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सोशलाइजिंग करते हैं तो हमारा खुद का और सामने वाले बंदे का दोनों का वेलफेयर सोचना होता है और एमिकेबली उसको आगे बढ़ना रहता है. दोनों को साथ में लेके, इसके लिए हम बैठते हैं ना, कोई भी सेमिनार वेबिनार भी अगर लेते हैं तो साथ में लेके, इट इज अ टीम वर्क, इट इज नॉट सिंगल हैंडेडली. You are being given the presentation by various speakers, but behind the scene, a lot of preparation goes into it. So selfishness is the root of all relationship problems. When we are selfish, we think of ourselves first and foremost. Like your arsenic, there was a case, arsenic, and a husband was suffering from, he got myocardial infarct, कार्डियक अरेस्ट वगैरह हुआ था, ईसीजी में फाइंडिंग से. हस्बैंड के ब्रदर को भी वैसा फाइंडिंग हुआ, तो उनका इनसिक्योरिटी फैक्टर, क्योंकि आर्सेनिक बिलोंग्स टू रो 4 में आया, और फिर उनको ऐसा मेरा आगे क्या होगा, तो आ रहा है स्टॉप. और फिर जो है डॉटर भी पास में शादी करे, क्योंकि ये लोग को कुछ होगा ना तो मैं मेरी डॉटर के साथ में तो कम से कम रह सकूं. डॉटर को खुद का अपना लाइफ है ना, तो नहीं. और फिर ईगो सेंट्रिक, फिर जो है ईगो भी आ जाता है. ईगो का बात जब आए, आइडेंटिटी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, तब जो है वो आइडेंटिटी ईगो फैक्टर स्टार्ट होता है. egocentric people are never easy to live with. They tend to drain on the, इतना जो है एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाता है. when we are selfish we want the praise. मुझे लोग पूछे और फिर गए हाँ अच्छा करके, ये मिला वो मिला, मुझे ये अवार्ड मिला वो अवार्ड मिला. यस, आपके अचीवमेंट आपके हार्डवर्क के लिए ये मिलेगा, बट डोंट let the jealousy factor prop in. But we are not willing to give anything in return. We have to give it in return. Arsenic is censorious, critical, fault finding. Okay, I am a backflower therapist. इसमें बीच जो है backflower remedy यूज होता है, और जो है होली और jealousy.
Now, homeopathic remedies covering selfishness. Another we have lycopodium, lack of self-confidence. There was a case. एक बार लाइको जा रहा था, एक बार नक्स वॉमिका की गाड़ी जो है दोनों जा रही थी, टक्कर लगाई तो लाइको बोला निकल निकल बाहर निकल, नक्स वॉमिका निकल बाहर निकल, नक्स वॉमिका एकदम स्टाउट, एकदम रोबोट पर्सनालिटी। फिर उनको देख के लाइकोपोडियम, क्या भाई टिमिड है लाइकोपोडियम इसके लिए। और जो लाइकोपोडियम है एक कंपनी में था, उनके साथ में दूसरा और एक उनका कलीग था। चल हम लोग दूसरे कंपनी में मैनेजर का पोस्ट है, so we'll give biodata resume, okay, and then they both were about to give, the other fellow gave, he became manager of the other company, or this lyco fellow got promoted, okay, so when he got promoted यहाँ का मैनेजर हो गए। फिर वो फ्रेंड ने फोन किया, आपका तो बायोडाटा यहाँ नहीं दिख रहा, तो द लाइको गिव्स, और लाइको ने जो है टक्कर मार के यहाँ पे मैनेजर का पोस्ट ले लिया। तो लव फॉर पावर, ये पावर ठीक है, सबको आगे बढ़ना है, अपने मेहनत के लिए करके आगे बढ़ना है, लेकिन मॉर्बिडिटी लेवल पे जहां पे बैलेंस नहीं होगा फिर आगे बढ़ के इट डजंट मेक मच सेंस, बिकॉज योर कॉन्साइंस विल नॉट परमिट। कॉन्साइंस जो है अंतरात्मा तो ऐसा ऐसा बोलती रहेगी कि नहीं ये जो कर रहे हो वो ठीक नहीं करके आप आगे बढ़ो, मेहनत से भी आगे बढ़ो, लेकिन जहां पे बैलेंस हिल गया, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल, ओके। प्लैटिना, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तुच्छ समझना लोगों को, कंटेम्पचुअस, तुझे आता ही क्या है, साइड में बैठ, चल साइड में बैठ, इधर बैठने का नहीं है मेरे बाजू में, साइड में बैठ, दिस इज हाउ प्लैटिना विल से। डॉक्टर आई विल मैनेज एवरीथिंग, delusion wealth में, but can you give me something for this cold? Shrieking aid first, shrieking, अंदर से क्राई है लेकिन दिखाते नहीं है, aid is your remedial aid, रेमेडी जरा दे दो ना, ठीक आई कैन मैनेज, बाकी सब तो ठीक है, मैं वॉक भी करती हूँ करके, मैं जो है गर्म पानी भी पीती हूँ, मैं स्टीम भी लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा सर्दी कुछ है क्या, कोई साबुदाना करेगा ही क्या, हाँ? तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, व्हाई, बिकॉज प्लैटिना बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली, मेरे लिए कोई राजा आएगा, वो गांव जो है गांव की लड़की भी रहेगी ना, उसको ऐसा लगता है मेरे लिए कोई राजा आएगा, साइड में बैठने का, मेरे बाजू में नहीं, आई बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली। The feeling that a person or the thing is worthless or beneath consideration, feeling of being better, smarter and more spiritual than others, selfishness, ego driven, और उसमें जो है प्राइड, हर्टीनेस, और डॉक्टर को ऐसा ऑकवर्ड फीलिंग आएगा, क्या बोल रहे बोला आप मैनेज करते हैं फिर यहाँ पे आए, ऐसा फीलिंग आएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इम्बैलेंस ऑफ दिस विषय विकार मिटाओ, और मन में जो है लोगों के लिए वेलफेयर। डॉक्टर मानसी, नेक्स्ट स्लाइड, यस। तो ट्रू लव इज सेल्फलेस, इट इज अनकंडीशनल, इट इज गिवन without any expectation. That true love actual in this world is given by mother for her munchkins, उनके बच्चों के लिए, ठीक है। It takes time to listen to others rather than, please underline this, dominating the conversation, okay, तो जो है उसमें dominate करेंगे तो instead mindful re-silence, पास्ट में जो है जाके फिर उसके बारे में सोचने से अच्छा लिव इन द प्रेजेंट और अपना फ्यूचर आगे अच्छा बना। पास्ट का वो काल, भूतकाल वो जो है मिट गया, हो चुका है कंप्लीट। जब तक आप वो चैप्टर जो है पलट नहीं करेंगे बुक को, वो पेज पलटी नहीं करेंगे, आगे का चैप्टर कैसे मालूम पड़ेगा। When you want a new chapter, you have to, और गाड़ी को जब आप आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वेट, गाड़ी को जब आप आगे बढ़ा रहे हैं और फिर आप बोलते रिवर्स लेके वो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी,
बी गिविंग रादर देन बीइंग परमानेंटली नीडी। चाहिए 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 गॉड को, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कभी थैंक यू भी बोल दिया करो। भगवान के टेम्पल में, मंदिर जिस इधर भी जाएंगे उधर चाहिए चाहिए चाहिए, गॉड ये चाहिए। सो पिकिंग अप ऑफ द फॉल्ट, क्रिटिसिज्म, बीइंग जजमेंटल, ये तो ऐसी ही रहेगी। इसको क्या आता है? फॉल्ट फाइंडिंग, वी नीड टू रिक्वायर अ सर्टेन टॉलरेंस फॉर अदर्स वीकनेस। ठीक है, तो दूसरों को वो कर रहे हैं ना, एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं, वो करने देना है। उनका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, सिर्फ आपको उनको गाइड करना है। इफ वी कीप पिकिंग अप ऑन द फॉल्ट ऑफ अदर ओवर पीपल, ये क्यों किया नक्सवामिका? ऐसा नहीं करना है। और इतना नक्सवामिका को जो है इमोशनल डिस्टर्बेंस वगैरह, कि उनको डिस्टर्बेंस और इंटरप्शन। नक्सवामिका काम कर रहा है, आप उधर गए, दिखता नहीं है क्या मैं काम कर रहा हूँ? समझ में नहीं आता है, अच्छा सॉरी, क्या सॉरी, क्या सॉरी? दिस इज नक्सवामिका। और एम्बिशन, नेम, फेम, सब चाहिए। आज सोशल मीडिया में तो बहुत है, गैजेट्स भी चाहिए। फ्रेंड के पास आईफोन है तो मुझे भी आईफोन चाहिए। फिर भी जो है कितने पैसे का, पेरेंट्स जो है दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट आईफोन बिकॉज किड हैज डिमांडेड। जब बीज नहीं बोएंगे तो आगे जाके तकलीफ नहीं होगी। बिना आईफोन के भी चल जाता है काम, ऐसा नहीं आज है। ये तो अभी सब टेक्नोलॉजी और मोबाइल, पहले के जमाने में भी लोग पढ़ते थे, स्ट्रीट लैम्प पोस्ट के नीचे बैठ के भी पढ़ते थे। इसमें डेडिकेशन, जील, एंथुजियाज्म है, पढ़ने का पढ़ते हैं। इफ वी कीप पिकिंग अप ऑन फॉल्स, you cannot expect change. Give them a chance. Criticism and suggestion. However, we need to make sure we don't be obsessed with noticing bad things. बुराई बहुत देख ली, अभी एक झलक अपनी अच्छाई की भी तो देख लो, किसी में अच्छाई है वो भी तो देख लो। नेक्स्ट स्लाइड। तो जरा इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन करना होता है। पेशेंट्स को दवाई देने के बाद भी आई हैव सीन इन एन नंबर ऑफ ग्रुप्स, एन नंबर ऑफ रूब्रिक्स लेते, फिर कंफ्यूज होते हैं, मैम इसमें जो है ना रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक, इतने सारे रूब्रिक्स दिए, जो कोर रूब्रिक है उसका अप्रोच, उस बेस पे रूब्रिक सिलेक्शन कीजिए। अगर आप रेमेडी से श्योर है, पोटेंसी चेंज कीजिए। नो, कीप ऑन चेंजिंग द मेडिसिन, बट yes, in emergency you may require many medicines, but otherwise constitutional at least wait, रेमेडी का एक्शन होने तक तो वेट करो। और फिर ऐसे लगे नहीं, आई एक्चुअली हैव टू चेंज द रेमेडी, ओके चेंज। होम्योपैथिक रेमेडीज फॉर पेशेंट पिकिंग अप द फॉल्ट इज criticism, being judgmental, fault finding, a critical attitude of the patient, Athenicum album, critical, perfectionism, fastidious, hard to please। उनके घर में मेड नहीं टिकती है। पहले है ना प्लेन वाटर से करना, फिर सोपी वाटर से करना, फिर डेटॉल वाले से साफ करना। मैडम मैं जा रही हूँ, नहीं चाहिए। आपके घर में मुझे काम करना ही नहीं है, उनके घर में बाइंड के। ऐसा क्यों किया? इसको ऐसा रखना चाहिए था ना, वैसा। नक्स स्वामी का सेल्फ रिलायंट ब्रांड चाहिए मुझे, जो है क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, अपना ब्रांड होना चाहिए। रिलायंट ऑन वंस ओन पावर एंड रिसोर्सेज rather than those of others, disposed to reproach others, blaming others, reproach, disapproval। ये प्रोजेक्ट जो किया ना, नहीं बराबर नहीं, वापस से करके आओ, चेंज कर लो, पूरा का पूरा मुझे चेंज चाहिए। और उसमें जो है टाइम अभी कितना दिया है तुमको, आधा घंटे में मुझे ये वापस से चेंज करके अच्छे से प्रोजेक्ट बना के लेके आओ। और डिसअपॉइंटेड इन देयर एक्शन, फॉल्ट फाइंडिंग, कितना गलत लिखा है इसमें, कितना मिस्टेक है, कितना एरर्स है, इसको सुधार के लाओ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस जब आता है, और उसमें मन का कंट्रोल, सेल्फ रियलाइजेशन, सोचेंगे रियलाइज करेंगे। अनकंट्रोल, डेल्यूजन, अटैचमेंट, मोह, माया, मेरा बच्चा,
मेरा घर आ जाता है, ठीक है। यस, अटैचमेंट रहता है, लेकिन मॉर्बिड लेवल पे बैलेंस नहीं रहेगा, वो नहीं चलता है। तो इसमें रीजनिंग, इसमें थिंकिंग, उस बेस पे अपना रिलेशनशिप जो है आगे बढ़ाना है, और उसमें दोनों का वेलफेयर देखना है कि इसमें इसका भला क्या है और मेरा भी भला साथ में क्या है। बहुत सारे रिलेशनशिप में कॉर्डियल रिलेशनशिप रखना है। और उसमें जो है, इसने ये बोला, ठीक है, टॉक इट आउट, वो उनको और भी बुरा लग सकता है, लेकिन एक जो है बैलेंस रिलेशनशिप के लिए 1-to-1 हार्ट टू हार्ट टॉक कन्वर्सेशन का बहुत जरूरी है। पेशेंट हैविंग अ क्रिटिकल एटीट्यूड कैन बी हेल्प थ्रू होम्योपैथिक मेडिकेशन, ओके। और उसमें आपका जो है कॉन्शियसनेस, आपका अवेयरनेस, सब कॉन्शियस जो है आपके ड्रीम्स लेवल पे भी जाके जो है आपका अनरिप्रेस्ड थॉट जो आप कॉन्शियस लेवल पे नहीं करते, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन योर ड्रीम। एक जो है केस था, मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर एल.एम. खान सर, तो उनका केस ये था कि एक गर्ल थी, छोटी बच्ची, कुछ 4-5 इयर्स की, और उसने उसको जो है स्कूल नहीं जाना है। स्कूल जो है क्यों नहीं जाना है, और फिर जो है उसने उनके पेरेंट्स को पूछा, डोंट नो, स्कूल में कोई प्रॉब्लम, डोंट नो। एंड इट वाज लाइक, मम्मा वो जो है ना रात को ऐसे जब सोते हो ना, तो ऐसा वो गोरिल्ला जैसा दिखता है, और गोरिल्ला में वो गोल चश्मा डालते हैं, गोल चश्मा करके। तो देन इट वाज आस्क्ड दैट ऐसे स्कूल में कोई सिचुएशन हुआ है क्या, तो बोलते देयर इज वन प्रोफेसर गोल चश्मा डालते हैं, मैंने मस्ती किया, okay, I misbehaved and that professor then scolded me, and that is reflected in the dream जो सबकॉन्शियस लेवल पे, और उनको एकोनाइट दिया गया था। इतना ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है। और एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड मैटर्स अलॉट। देयर इज अ बुक, ओके, so we will be talking about that book apart from this seminar webinar. You can keep in touch with me. My mobile number also I am sharing, 877-963-0369. I repeat, 877-963-0369. It is by Norman Vincent Peale. You can note down. Okay, so this book, it talks about positive attitude and it matters a lot. Let's not mind on a particular matter. If you don't mind, it doesn't matter. All is well, isn't it? So the next slide. So you have to done. So you have to navigate through the life challenges. Okay, and there will be purposeful living. We are gifted with a reason gifted mind, but animals are deprived and devoid of it. Okay, then animal just has to fulfill his or her role. Like अपना रोल जो है वो फुलफिल करना है उनको, लेकिन मैन को जो है हायर कनेक्टेड रहता है। दिस इज have been seen in symbiotic relationship, aphorism number 5, wherein he talks about domestic. Dr. Henneman sir says it is morality, right, wrong, logical, reasoning, rational, judicious prescribing, logical, judgmental prescribing करना है। हमारे एक मेंटर है, वो बोलते हैं हर आने वाले पेशेंट को जो है मेडिसिन, कोई इनडिस्पोजिशन वाला भी रहेगा, पेट खराब हो गया डॉक्टर, और फिर कल जो है ना होटल का खाया था, 1-2 दिन में जो है ठीक हो जाऊंगा, सैकलैक, सैकलैक विल वर्क देयर। नहीं, लेकिन वो आया तो आर्जेंटम नाइट्रिकम जलसेनियम डायरिया ना, सैकलैक से भी कम होगा उसका जब इनडिस्पोजिशन होगा तब। पेट खराब, फॉल्टी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सिटिंग विद द गैजेट्स। आज के पार्क भी खाली है, बेटा रो रहा है, मोबाइल दे दो, मोबाइल का एडिक्शन हो गया बेटे को। मैडम क्या करे, बीज बोया ना मोबाइल देने का, रोने दो, नो प्रॉब्लम,
नो प्रॉब्लम, रोने दो, थोड़ा रोएगा फिर बाद में खुद समझ जाएगा। नहीं, लेकिन कांस्टेंट 24 आवर्स में से जो है ना 10 to 15 आवर्स मोबाइल पे रहता है वो। So, and when the patient comes, no, we have said we have to be an unprejudiced observer. अब केस लेते हैं, एकोनाइट से लेके जिंकमेट सारी रेमेडीज याद है। तो ये पेशेंट है ना, पल्सेटिला भी हो सकता है, नहीं नहीं, चिपिया, नहीं नहीं, इग्नेशिया, नो डाउन, साइड में यू हैव गॉट टू अनलर्न व्हाट यू हैव लर्न एज अ क्लीन स्लेट। इस पेशेंट को मैं जानती नहीं हूँ, न्यू पेशेंट है, इवन फॉलो अप हैज टू बी कंसिडर्ड एज अ न्यू केस। और फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जो आपका मेडिसिन दिया ना, उसके बाद का सेकंड प्रिस्क्रिप्शन डिसाइड एक्चुअली ऑफ देने के बाद में ही पता चलेगा ना कि वर्क की है मेडिसिन या नहीं वर्क की है। तो एज्यूम नहीं करना है कोई भी। आप सिम्टम्स, रूब्रिक, रेमेडी पिकअप किया तो रूब्रिक्स और जो सिम्टम्स ले रहे कंफर्म पहले कर लो पेशेंट को कि आप यही बोलना चाहते हैं ना, व्हाट यू आर परसीविंग एंड व्हाट द पेशेंट। एक सॉन्ग भी है तारे जमीन पर, देखो देखो क्या ये पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश आया आसमान में। तो वन पर्सन इज सेइंग बारिश आया, इट इज रेनिंग, द अदर इज सेइंग द टैप इज फ्लोइंग, वाटर फ्रॉम द टैप इज फ्लोइंग। तो बारिश आया आसमान में, छोड़ दिए हैं नल खुले कई। वन इज सेइंग देखो देखो क्या ये पेड़ है, ट्री है। दूसरा बोलता है चादर ओढ़ के कोई खड़ा है। दोनों सही है, पर्सपेक्टिव तो दोनों के सही है, देखने का नजरिया दोनों का सही है, कुछ राइट रॉन्ग नहीं, इट इज पर्सपेक्टिव कुछ मैटर्स। और जो है इससे कंफर्म करके कंटिन्यूस लर्निंग फॉस्टर्स ग्रोथ। इसके लिए जो है कंटिन्यूस फ्रॉम राइट फ्रॉम सितंबर टिल जनवरी आगे भी जो है ये वेब सीरीज चलते हैं, सो दैट यू आर गिविंग द नॉलेज टू अपग्रेड योरसेल्फ। लेकिन लेकिन सेल्फ स्टडी के बिना कोई मतलब अर्थ नहीं है। और जो मियर डिसअपियरेंस ऑफ द सिम्टम्स, सिम्टम्स चला गया, पेशेंट क्योर हो गया, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट, एफोरिज्म नंबर 2। जब तक उसको वेल बीइंग, जब वो पेशेंट बीमार पड़ा उसके पहले जो वो वेल बीइंग था और एकदम मस्त था, वैसा ही मस्त चाहिए तो उसको क्योर बोलेंगे। गुड स्लीप, गुड एपिटाइट, गुड फूड, उसको ताजा लगना चाहिए, तब जाके क्योर बोलेंगे। जस्ट मियर डिसअपियरेंस ऑफ द सिम्टम्स इज नॉट क्योर। इट इज द इंटरप्ले बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी इन हेल्थ एज वेल एज इन डिजीज। डिसरप्टेड माइंड, इट इज मंकी माइंड कहा गया है। माइंड का बैलेंस सीख लिया, जग जीत लिया, ठीक है। और उसमें जो है इंक्विजिटिवनेस और क्यूरियोसिटी, एक क्यूरियस माइंड रहता है और इंक्विजिटिव इज वन स्टेप अहेड। इसी इंक्विजिटिव से डॉक्टर हेनीमैन सर ने होम्योपैथी का आविष्कार, एडवेंट ऑफ होम्योपैथी किया है। उसमें उन्होंने जो है फ्यूलेंस मटीरिया मेडिका, ही वाज ट्रांसलेटिंग फ्रॉम जर्मन टू इंग्लिश, ओके। और फिर जो उसमें लिखा तो फ्यूलेंस सर ने ऐसा बोला है कि सिंकोना बार वन इंजेस्टेड, ओके, बिकॉज ऑफ इस बिटर, कड़वाहट, इसके वजह से मलेरिया होता है। तो बाकी चीजें क्यों नहीं, एनिमेन सर ने सोचा। फिर उन्होंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, मैं खुद ही ले लेता हूँ। फिर सिंकोना 4 ग्राम 4 आउंस लिया, दिया उनको, मलेरिया का सिम्टम्स हुआ। फिर वो ही मलेरिया के पेशेंट को दिया, उनको ठीक हुआ। फिर डॉक्टर केंट को बुला, डॉक्टर बोनीगुसन को बुला, डॉक्टर बोगर को बुला, आप भी लेके देखो। उनका टीम था, जैसे हम टीम में वर्क करते हैं उनका टीम था। तो जो है उन्होंने वही फाइंडिंग जो है अपनी पूर्व वर्क की डायरी में लिखा, और दैट लेड टू द एडवेंट ऑफ होम्योपैथी। उस एक लाइन क्यूलेंस मटीरिया मेडिका का लाइन उनकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो हमारी लाइफ को क्यों नहीं, लेकिन पढ़े कौन,
Stolbotsky book, open it and read. One click, that eureka moment, the psychological viewpoint आपकी लाइफ चेंज कर सकता है. रीड. जब हेनीमैन सर की लाइफ से हम, अगर जो है ऑलमाइटी लॉर्ड हेनीमैन सर के प्यारे है और वो जो है गिफ्ट होम्योपैथी का हमको दिया है उन्होंने, तो हम भी तो प्यारे हैं भगवान को, है कि नहीं है? फिर तो उनको भी जो है अफोरिज्म नंबर 6, अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर का, प्यूरिटी इन दी हार्ट and it will reflect on one action, your speech, your demeanor, and creating lasting impressions on others. Thank you so much. And any questions coming up, Dr. Mansi? And I need the feedback as well. All the delegates, kindly share your feedback. Yes, Dr. Mansi. Yes, ma'am. We have some questions. Okay. Like Dr. Dhanshi has asked, perception matters. How you perceive this? If you mind, it does matter. But if you don't mind, it doesn't matter at all. So matter in term is a substance, and we are vibrating at a energy and it at a cosmos. So when a level at a higher vibration and the other person is at a lower vibration, they are bound to have this conflict. Okay, ma'am. तो आपकी जो वाइब्रेशन है, अगर आप रेजोनेट करेंगे दूसरे के वाइब्रेशन से, वो वेवलेंथ से, तो फिर जो है अलाइन होंगे, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आएगा. ठीक है, हमेशा जो है वो अलाइन नहीं हो सकते. एटलीस्ट सामने वाले का पर्सपेक्टिव, उसका परसेप्शन समझने का, रीएनालाइज करने का कोशिश करना है. Yes, thank you, ma'am. And Dr. Seema Sultana is saying that it was a very nice session. Thank you so much, and all best wishes to all of you. And Thank you, to the everyone. team as well. Dr. Mansi, you have been very supportive when it comes to patience and perseverance in technology. And from the core bottom of my heart, I wish you and the entire team all best wishes. Mentioning Dr. Mohit, it so happened that I had shared my YouTube channel link in one week. So Yes, came ma'am. in coordination with Dr. Mohit. आप हमारे चैनल में भी यूट्यूब चैनल लिंक में हम पोस्ट कर सकते हैं. व्हाई नॉट होम्योपैथी प्रोपोगेशन के लिए डॉक्टर रक्षा मैम का प्रोपोगेशन बाद में, वो तो हो थोड़ा तो चाहिए, मेहनत किया है तो एज वी सेड इन, बट बिल्कुल मैम. अपार्ट फ्रॉम दैट जो है होम्योपैथी का प्रोपोजेशन होगा, व्हाई नॉट शेयर कर कीजिए. एंड देन फिर उनके थ्रू आपसे संपर्क हुआ और फिर आपने कहा कि ऐसे वेबिनार सीरीज चल रहे मैम. और फिर I want to even thank Mansi because I had given a topic, okay, mind over matter, but the entire topic title is given by Dr. Mansi. Thank you Thank, so much. thank you, Okay. ma'am. And for the rest of the attendees, I would like to share the introduction of Dr. Raksha Thakur once again. So please pay attention. This is Dr. Mansi from Homeopathy 360, and we have Dr. Raksha as our speaker, and she has given a very wonderful webinar on mind matters more. So basically, Dr. Raksha Thakre guides budding homeopaths and doctors practitioners through her initiative Homeopathic Advanced Learning Center, comprehending rubrics through case presentations. She is a wonderful homeopath and a passionate senior homeopath practicing for over 2 decades. She is member of committee TJ Education Society, Thane, Mumbai, and she is associated with various trusts and like Meena Mangal Lal Charitable Trust, and she helps students through her sessions on homeopathy. She has written various articles and presented her cases at national and international platforms. So we are very proud of her, and thanks to Dr. Raksha ma'am that she has arranged her time, her quality time for us. Thank you, ma'am.
Thank you so much. And I owe it all to Dr. Henny Mentor and to all my mentors as well as the Almighty Lord who has bestowed such a wonderful gift of homeopathy to us all. Master, in your remembrance, and hereby we end the session. Thank you so much. All Thank best wishes to the team, to the delegates joining in, and even thanks to you all for taking out the precious time to listen to me. thank you so much, ma'am. Okay, ma'am. Bye.